So this software origin, when you open, will have two options, AX, BY. Then since yours is a simulation, you don't need the third column. So here basically you can add the new columns by clicking here. Now plotting. So basically you will have your raw result somewhere in Excel. Now show me your results. You can use Excel for the same plotting purpose, but Origin is more professional, correct way of plotting. So let's say you have simulated for length 1, 1.1, 1.2, 1.3. Okay, your magnitude was around, since it's a simulation, there will not be any error bar. When you do practical experiment, there will always be an error bar. So let's say gain was 4.5, 5.1, then 5.6, and then 4.2, something like this. Okay. You have your results, right? So let's say that is the volts per meter. This is the unit you have, and this is the length. Okay, so this raw sheet you will have. Now in Origin, X is always your x-axis. So without any statistical calculation, if you just want to plot something, take this Control C, 1 में Control V, ये हो गए values. Units जो है, now this was in mm, so put it in here. Long name, now this was, let's say, width, whatever, width in mm. अब आप इस एक्सेल शीट में जाइए, ये जो है ये आपकी फील्ड है, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पेस्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, इसका यूनिट है volts per meter. And generally you have error bar. If it is a simulation, then only you don't have error bar. So if you have any error bar, right now I am just putting random simulation error 0.4. Generally your software specifies if there any simulation error possible, and set as यहाँ पे y error select करना है. और ये ग्राफ बनाने के लिए बस ये सिलेक्ट करो कंट्रोल ए करके डेटा, गो टू द प्लॉट. नाउ हियर वी ऑलवेज प्रेफर लाइन प्लस सिंबल. ओके, सो ये जो है ये आपके एरर बार्स हो गए, उसमें से पास होने वाली लाइन, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब यहाँ पे ये ठीक से नहीं दिख रहा है, तो डबल क्लिक ऑन दिस. Once you double click, it will open the options. पहले तो ये जो भी आपका फील्ड है इसको अंदर लेके आओ, इसके लीजेंड्स को ग्राफ के अंदर लेके आओ. सेकेंड, इफ यू आर नॉट श्योर कि ये लाइन ठीक से फिट नहीं हो रही, यू कैन गो टू द प्लॉट. नाउ हियर यू कैन गो टू द बुक 1, go to the plot. Here you can select something like symbol scatter, क्योंकि वो लाइन ठीक से दिख नहीं रही थी.
फिर वहाँ पे यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, प्लॉट सेटअप, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट ओपनिंग बट इट शुड गिव। तो बेसिकली इससे जो अपने आप ग्राफ बन के आते हैं उसमें स्केल वगैरह सब परफेक्टली दिखता है। गो टू द फाइल, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, first it will ask you to save it on a desktop. Now the problem with freeware is it turns off after every 3 minutes. For first month, 1 month it doesn't do that, but after that it closes after every 3 minutes. But the good part is it saves before it closes, so it asks you to save your file. So last plot 3 minutes were over, that's why it closed on its own. Now here you can go to file, open, untitled, अपने आप खुल जाएगा जो प्रीवियस वर्क है उसी पॉइंट से, ठीक है। अब ये सारे नहीं थे तो मैंने क्या बोला था, इसको चेंज करना है। सो यू कैन गो फ्रॉम 0 टू लेट्स से 1.5 या 6, ठीक है। लीनियर वैल्यूज लेट्स से बाय 1, क्लिक हो गया, ये 1 के बीच में आ गए। द वे इट शोज द ग्राफ, तो आपने 0 से ज़्यादा वेरिएशन किया नहीं है, आपका वेरिएशन चालू हो रहा है 1 से, तो इट्स बेटर टू टेक फ्रॉम 0.9, ये 1.4 तक ही जा रहा है। ठीक है, अब 1, 1.1, 1.2 और 1.3 परफेक्ट दिखा रहा है। इसी तरह वाई एक्सिस भी सेट कर सकते हैं। Once you set, double click on this, go to x axis, show top, go to y axis, show top, click OK। आपको फिर ये सब डिलीट करना होता है टॉप से, और इसीलिए हमने वो लीजेंड अंदर लाया था क्योंकि अब ये स्क्वायर बॉक्स बन गया। ये प्रोफेशनल ग्राफ लगता है जो पेपर में आता है, और इसको प्रॉपरली ऐसे अलाइन करना है कॉर्नर में। ये सभी चीज़ें टाइम्स न्यू रोमन से लेकर फॉन्ट साइज 24, और आपका 2 कॉलम फॉर्मेट है तो बोल्ड करना है। अब अगर आप विड्थ माइक्रो में है, कभी कभी ऐसे माइक्रो में होती है, तो व्हेनेवर यू टाइप आपको M लिखना है और ग्रीक लेटर करना है तो M का माइक्रो हो जाता है। सिमिलरली नैनो है तो N, L है तो डिपेंडिंग अपॉन ग्रीक लेटर्स यू कैन इन्वर्ट दोस थिंग्स, ठीक है। वंस यू get this professional graph, go to file, click on export graph, last use में डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ग्राफ बन जाएगा। अदरवाइज यू कैन गो टू एक्सपोर्ट ग्राफ, ओपन डायलॉग, ओके। अब यहाँ पे PNG जनरली प्रिफर्ड है पेपर्स के लिए, रिपोर्ट के लिए, क्योंकि लाइटेक्स में लिखते हैं जल्दी। लॉन्ग नेम मतलब जो भी ग्राफ का नाम है, इफ़ यू वांट टू गिव योर नेम यू कैन जस्ट क्लिक ब्राउज। कहाँ पे सेव करना है आपको, डेस्कटॉप पे ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका नाम देना है, प्लॉट ऑफ विड्थ वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन यहाँ पे you can set your length, width, inches, DPI resolution. This is good enough, but for more clearer versions you can go 600 and all, and then click OK, ठीक है। ये एक तरह का ग्राफ हुआ, ये स्टैंडर्ड ग्राफ जो हम हमेशा बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा ग्राफ होता है, वो स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स होता है। सो गो टू द बुक अगेन, बुक 1, इसी का स्टैटिस्टिकल ग्राफ, एक तो एक सिंपल स्टैटिस्टिक है बॉक्स चार्ट, वो उसका बॉक्स ग्राफ देता है। बॉक्स ग्राफ में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका जो टर्म्स है उसका वेरिएंस, मीन,
99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सब अपने आप कैलकुलेट है, आपको सिर्फ वैल्यूज यहाँ पेस्ट करने हैं। अंडरस्टूड? सो बॉक्स ग्राफ का लीजेंड जो है वो कुछ इस तरह से होता है। सो यू वांट टू गो टू द लीजेंड्स, यहाँ पे लीजेंड्स बॉक्स चार्ट कंपोनेंट, यहाँ पे आपको जो भी देखना है, मीडियन, मैक्स, 99%, मीन 1%, मीन, विस्कर, क्लिक ओके। तो ये वाली लाइन है वो विद इन 1.5। ये स्टैटिस्टिकल मीनिंग है कि आप अगर स्टेटमेंट करोगे कि मेरी वैल्यू अराउंड 5 है तो यू हैव टू शो दिस बॉक्स प्लॉट, और उसका LQR उस रेंज में है कि नहीं दिखाना होता है। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बॉक्स प्लॉट होते हैं। जैसे ये एकदम क्लियर हो गया, इसका बॉक्स फैल ही नहीं रहा है, तो अगर ये क्लेम है कि ये 0.5 है, C इज़ 0.5 ऑलवेज, या C इज़ 0.4, दैट मीन्स दैट क्लेम इज़ वेरी क्लियर। बॉक्स जितना बड़ा उतना वेरिएंस ज़्यादा है आपके रेंज में, और विड्थ के लिए ये पॉइंट वेरी कर रहा है और ये सबसे बेस्ट पॉइंट है जहाँ स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल। तो ये बॉक्स प्लॉट से स्टेटमेंट बनते हैं, और प्लॉट बनते हैं जो जनरली पेपर्स में यूज़ होता है, वेरी कॉमनली यूज। अगेन प्लॉट के लिए आप हमेशा बुक पे जाओ, डेटा से लेकर हो, प्लॉट में जाओ, और यहाँ पे आपको कॉलम पार्ट बहुत काम का रहता है, ये वाला कि ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और ये उसके एरर है, क्लियर? पर नो ग्राफ मेक सेंस विदाउट दिस एरर बार्स until and unless it's a simulation. सिमुलेशन ग्राफ्स अगर आपके रिजल्ट में एरर बार है, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल रीडिंग्स हमेशा एरर बार, सिमुलेशन रीडिंग नो एरर बार, रिमेंबर? एंड देन कैन चेंज द कलर, डबल क्लिक करो, यहाँ पे रेड की जगह मल्टी कलर चाहिए, जो कुछ है, इंक्रीमेंटल, शेडेड, ये सब कर सकते हो। प्रेफरेबली सब कुछ ब्लैक एंड वाइट करना, तो फिर अलग अलग ग्राफ दिखाओगे कैसे? तो पैटर्न्स में जाओ, पैटर्न में यहाँ पे अलग अलग इतने सारे पैटर्न आप ब्लैक एंड वाइट में ही दे सकते हो। ठीक है, ये सारे प्रोफेशनल ग्राफ जो पेपर के लिए बनते हो। एंड अगेन इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट यू कैन डू दैट। सो दिस इज अबाउट द ग्राफ मेकिंग।